اب کوئی فرد یا نجی ادارہ سود پر قرض نہیں دے سکے گا۔ سندھ حکومت نے نجی سود خو اور مافیا کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ گورنر کی منظور سے سودی قرض دینے والوں کے خلاف قانون نافذ۔ قرض دے کر مجبور لوگوں کو بلیک میل کرنے والی غیر قانونی موبائل ایپس بھی ریڈار پر آ گئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گلی محلوں میں قرض پر سود وصولی پر کارروائی ہو سکے گی۔ نجی طریقے سے سود پر قرض دینے والوں کے خلاف مقدمات درج ہو سکیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ پروہیبیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لون بل 2023 اسمبلی سے منظور کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گورنر سندھ کی منظوری کے بعد قانون سندھ میں نافذ کر دیا گیا۔ بل منظور ہونے سے نجی طریقوں سے سود کے عوض قرض دینے والوں کے خلاف مقدمات درج ہو سکیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ گلی محلے اور علاقوں میں نجی افراد کی جانب سے قرض پر سود کی وصولی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی۔ قانون لاگو ہونے سے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سود وصولی کرنے والوں کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ میئر کراچی چھٹی کے دن بھی عوام کی خدمت میں پیش رہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع شرقی، وسطی اور کماڑی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے ساتھ انتظامیہ کو متوقع بارشوں سے قبل نالوں کی صفائی یقینی بنانے کی ہدایات دی گئیں۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ عوامی میئر نے عوامی سواری کا سہارا لے لیا۔ میئر کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی علی احمد جان کے ہمراہ موٹر سائیکل پر موڈو میر بہر ٹاؤن کا دورہ کیا اور عوامی مسائل سنے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع شرقی کے دورے پر حبیب یونیورسٹی کے اطراف پہلوان گوٹ پر واقع نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب ضلع وسطی کے دورے پر پہنچے تو انتظامیہ کو متوقع بارشوں سے قبل پوسٹ آفس کے اطراف نالے کی صفائی کی ہدایت دی۔ میئر کراچی نے باغ ابن قاسم کا بھی دورہ کیا، جس میں ان کی جانب سے پارک میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے سائیکل ٹریک بنانے اور عوام کو دیگر سہولیات مہیا کرنے سے متعلق سٹی کونسل کے اراکین سے مشاورت کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21۔ پانی چوروں کے خلاف گرینٹ آپریشن، 14 مقدمات درج۔ منگو پیر کے علاقے میں 60 سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹس گرا دیے۔ 4 مقدمات پختون آباد، 4 الطاف نگر اور دیگر دین محمد گوٹ کے ہائیڈرنٹ کے خلاف درج کیے گئے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی واٹر بورڈ پانی چوری کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے بریک ڈاؤن دبیجی پمپنگ اسٹیشن پر 72 انچ قطر کی لائن نمبر 5 متاثر۔ واٹر کارپوریشن حکام نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ لائن کا معائنہ کیا۔ سی او واٹر کارپوریشن صلاح الدین کی متاثرہ لائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ حکام کے مطابق گلشن حدید، شاہ لطیف ٹاؤن، لانڈھی، کورنگی متاثر ہوں گے۔ ملیر کے کچھ علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ لائن پر کام کی نگرانی میئر کراچی خود کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کی لائن کو جلد از جلد بحال کرنے کی ہدایت، کہا متبادل ذرائع سے پانی کی سپلائی بحال رکھی جائے۔ شہر قائد میں روٹی ملے گی 2 روپے کی، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا بڑا اعلان، کہتے ہیں شہر قائد میں 300 تندور بنائے جائیں گے جہاں فی روٹی کی قیمت 2 روپے ہوگی۔ وہ وقت بھی آئے گا جب 2 کے بجائے 1 روپے کی روٹی بھی میسر ہوگی۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورسز اینٹری ٹیسٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ٹیسٹ میں پاس طلباء کو گورنر ہاؤس میں 1 سال تک فری آئی ٹی کورسز کروائے جائیں گے۔ ہمارا اصل مقصد طلباء کو باشعور فراہم کرنا ہے۔ ایک اور اعلان آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری فاروق امین صاحب سے بات ہوئی۔ کراچی کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ روٹی جو ہے وہ آج تندوروں پر 20 روپے کی شاید مل رہی ہے، 25 روپے کی۔ پہلے کراچی کے اندر 300 تندور بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں جہاں 2 روپے میں روٹی دستیاب ہو، اور یہ پوری کراچی میں ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سے کے بعد ایسی بہت ساری چیزیں آپ سب کے درمیان اس شہر کراچی اور اس صوبے میں ہوں گی۔ اسی طرح اسی گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی لگا کر آپ سب کو جو ان میں سے پاس ہوں گے 1 سال تک مفت کورس کروایا جائے گا۔
बल्दिया उस्मा कराची की नौमुंतखब काउंसिल का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इजलास में बल्दिया उस्मा कराची के मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर और अराकीन काउंसिल का तारुफ होगा। सिटी काउंसिल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स तरजीहात से काउंसिल अराकीन को आगाह करेंगे। नाजिम आबाद टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले इजलास में अहम फैसले कर लिए। चेयरमैन टाउन नाजिम सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की सदारत इजलास में मुंतखब अराकीन के नामों की मंजूरी दी गई। इजलास में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की अदम मौजूदगी में काउंसिल के 2 अराकीन को सदर नशीन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। इस दौरान टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़िमाबाद की सरकारी मेहर और निशान की मंजूरी, काउंसिल की मुख्तलिफ कमेटियों के क़याम और कमेटी कारकुन मुंतखब किए गए। इजलास में काउंसिल के उमूर चलाने के लिए नुसरत जहां को अफसर मिजाज मुकर्रर कर दिया गया है। इजलास में टाउन चेयरमैन नाज़िमाबाद ने कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़िमाबाद का इजलास सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 तरमीम शुदा 2021 के तहत मुनक्किद किया गया है। इस निज़ाम के तहत कायम होने वाले बल्दियाती इदारों को हुकूमत सिंध बाइख्तियार बनाएगी। ये ऐवान हुकूमत सिंध से भरपूर मुतालबा करता है कि इदारों के माली और इंतज़ामी बहरान को हल करने के लिए फौरी तौर पर सूबाई मालियाती कमीशन का क़याम अमल में लाए और आइन के आर्टिकल 140A के तहत मुकम्मल बाइख्तियार इदारा बनाए। शहरियों से रवाबित के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाज़िमाबाद टाउन में उर्दू ज़बान में बल्दियाती उमूर अंजाम देने के लिए भी करारदाद पास की गई है। इजलास में अब्बासी शहीद अस्पताल का इंतज़ामी कंट्रोल टाउन म्यूनिसिपल नाज़िमाबाद के हवाले करने की भी करारदाद पास की गई है। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने छुट्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग, मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन के नाम पर बिजली की बंदिश, ऑल सिटी एरिया और मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, सदर सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी के इलाके मुतासर। गुलबहार, गार्डन, उस्मानाबाद, लयारी में 10 घंटे लोड शेडिंग की शिकायत। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात देखेंगे कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। छुट्टी वाले दिन भी लोड शेडिंग से निजात शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। गुलशन जौहर ब्लॉक 7 के मकीन बिजली की लोड शेडिंग की अजियत से 2-4 हैं। कहते हैं कि इलाके में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से बुरा हाल हो गया। बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में ना करदा गुनाह की सजा भुगतना पड़ रही है। बिजली चली जाती है तो घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासर होते हैं। बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी में दुश्वारी पेश आती है। जनरेटर हम सब लोग चला रहे हैं और हर घर में जैसे आप आवाज़ें सुन रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये छोटे छोटे जनरेटर हैं कितने 14-14 घंटे तक उनकी कैपेसिटी है और उसकी पेट्रोल की कीमत आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर है। कि इलेक्ट्रिक आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकती, जो बिल पे कर रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं दे सकती, तो ऐसे इदारे का क्या फ़ायदा। मेरी हुकूमत सिंध से भी अपील है कि इलेक्ट्रिक पे नज़रसानी करे। फ्रिज आपका नहीं चलता है, पंखे आपके नहीं चलते, लाइटें आपकी नहीं चलती, समझे ना, बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते। इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली के बिलों की पाबंदी से अदायगी के बायस के इलेक्ट्रिक उन्हें स्टार कस्टमर का दर्जा देती है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग भी करती है और जवाज बिजली की चोरी का पेश करती है। के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि इलाके की बिजली बंद करके उन्हें सजा दे। हम इतनी तकलीफ में है, आप यकीन करें पिछले 15 महीने हो गए हमें, हमारा इलाका लोड शेडिंग फ्री था, हमें कोई लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन कुछ लोग आते थे, हमारे यहाँ कुंडा लगाए, उन्होंने हमारे इतने लॉसेस बना दिए। हालांकि हमारी ये गेटेड सोसाइटी है, इसके अंदर हमारी 100% बिलिंग है। बिजली चोरी की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। अगर हम चोरी करें तो हमें उसकी सज़ा दी जाए। अगर जो चोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि ये हालात पैदा करके हम लोगों को उकसाया जा रहा है कि हम भी वही तरीक़ेकार इख्तियार करें जो दूसरे कर रहे हैं। कराची में लाइन्स एरिया, सदर सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार, गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी समेत ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, अल्लाह वाली, नागन चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटों की बिजली बंद की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन जहांगीर के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में गैस बहरान थम न सका, शहरी मुसलसल गैस लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला हैं। सजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और रंगी टाउन के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस बंदिश जारी है। मलीर, कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्से गैस बहरान से मुतासर हैं। प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग पर शहरी फट पड़े। कहते हैं गैस के मसाइल ने सुख चैन छीन लिया। दिन में किसी भी वक्त गैस मअतल या प्रेशर में कमी हो जाती है। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट के साथ।
गैस मसाइल से शहरियों की जान न छूट सकी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजाबाद, औरंगी, मलीर के पोश मुजाफाती इलाके कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्से गैस बहरान से मुतासर हैं, जहाँ रात से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है, लेकिन दिन में भी अचानक गैस प्रेशर में कमी और तातुल से शहरियों को ज़हनी अजियत से दुचार होना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि गैस गायब होने के बायस होटलों से खाना लाना पड़ता है। सोई सदरन गैस हुक्काम गैस मसाइल की मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं, लेकिन इन्हें संजीदगी के साथ हल नहीं करते। कभी आता है, कभी यहीं आता है, चलता है तो स्लो चलता है। बिल्कुल शिकायत भी की थी, गाड़ी आई थी कल और उन्होंने चेक किया, फिर चले गए। बुरा है, ऊपर से लोड शेडिंग है, गैस नहीं होते, खाना होटल से मंगवाते हैं। तर्जुमान सोई सदरन गैस के मुताबिक सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाने और इनके मसाइल हल करने के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के का आयशा फैमिली पार्क 17 साल से तबाहाल है। पार्क को बल्दिया बस्ती की इंतजामिया ने नकारा गाड़ियों की वर्कशॉप बना लिया है। शहरी कहते हैं 2005 में पार्क तामीर हुआ, सिर्फ 1 साल में उजड़ गया। हदूद और रकबे के लिहाज से पार्क की बहाली बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कालिदम बल्दिया बस्ती में पार्कों की बहाली के लिए बहुत काम हुआ। 75 पार्क मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की आमद से कबल बहाल कर दिए गए, मगर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए का आयशा फैमिली मॉडल पार्क इंतजामिया की नजरों से ओझल ही रहा। कई अरसे से इसके पीछे मोहल्ले वाले और इलाके के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि इसको बनने नहीं दे रहे और इसको वर्कशॉप की शक्ल दे के यहाँ पे एक तरीके का कब्जा करा दिया गया है। बहुत एहतजाज किया लेकिन को मानने वाले नहीं थे और हमारी किसी ने सुनी नहीं। मतलब अहले महल्ला खवातीन आगे, बाहर बच्चे आगे, उनको सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया गया कि भाई आप आपको चंद दिनों में ये शिफ्ट कर देंगे और टेम्परेरी रख रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी के चक्कर में पूरा पार्क ख़राब हो गया। देखें क्या है, बंजर है बिल्कुल, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंग हुई यहाँ पे। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए का वसी इलाका कसीरुल मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल है। फ्लैटों के मकीनों के लिए ये पार्क किसी नेमत से कम न था, मगर इंतजामिया ने इस पार्क को गाड़ियों के वर्कशॉप में तब्दील कर रखा है और बच्चे सड़कों पर खेलने पर मजबूर हो गए हैं। जाहिर है कि जब ये पार्क आबाद था तो यहाँ के बच्चे वगैरह, हमारी ख़वातीन, जो ख़वातीन पार्क था, यहाँ पर आके बैठती थी, फ्रेश हुआ करती थी, बच्चे यहाँ तक खेला करते थे। अब इस पार्क का हाल इन्होंने ये कर दिया है कि आप जैसे देख रहे हैं, आप दिखाएंगे आपने कैमरे में, कि बच्चे अब सड़कों पे खेलते हैं। ये पार्क बहुत अच्छा था और हम इसमें क्रिकेट खेलते थे, अब हमारे को सड़कों पे खेलना पड़ रहा है। एक्सीडेंट और कहीं लग जाए उसकी खतरा है। पार्क पहले बहुत अच्छा था, हम यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि आयशा फैमिली पार्क को फौरी बहाल किया जाए और इसे तबाही से दोचार करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ का छोटा सा झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए तक की कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई खुश नजर आया तो किसी ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने की अपील कर दी है। तफसीलात मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट में। हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 9 रुपए सस्ता होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। कीमतें नीचे आई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहरी कहते हैं शुक्र है हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल तो आया। उम्मीद है दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। बहुत खुशाइन काम है ये। वज़ीर साहब ने बहुत अच्छा काम किया पेट्रोल की में कमी करके, और आवाम को रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन में भी अच्छे इसके असरात होंगे। आवाम बहुत इस टाइम परेशान थी, चलो कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, ये उनकी मेहरबानी है। जहाँ कुछ शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से खुश दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों ने इसे नाकाफी करार दिया। कहते हैं 9 रुपए सस्ता होने का क्या फायदा, हुकूमत को चाहिए पेट्रोल मजीद सस्ता करे। ये तो कोई कमी नहीं हुई, अब बढ़ाते हैं तो 25 रुपए या 50 रुपए बढ़ा देते हैं, कम करते हैं तो 9 रुपए कम करते हैं। आवाम तो परेशान के बायस बना हुआ है ना आवाम के लिए। तो जहाँ से ये चले थे 150 से वहीं वापस लाए ना। अगर 150 बढ़ाते हैं और उसमें से 10 रुपये या 9 रुपये कम कर दी, इसमें क्या कमाल की क्या बात है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक माह में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया, जिसका फायदा आवाम को ही होगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पापोश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन के कत्ल में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ज़हीर और खलील ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मकतूल अमीन अलवी बच्चों को शॉपिंग के लिए लेकर निकले थे। डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने गोली मारी और फरार हो गए थे।